WhatsApp. ہمارا دعائیہ میٹنگ کا بھی یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس بات کے لیے دعا کریں، جیسا کہ ہمارے بشر آرجوید کھوکھر نے بھی یہ کام کیا ہے کہ جو اس ٹی وی کو اور اس نے یہ کام جدوجہد کیا ہے، ہم سب مل کر اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند اپنے بیٹے کو خوب اقبال مندی بخشے تاکہ اس کے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہم اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے کہ بھائی عارف کے لیے کہ وہ جو جدوجہد میں ہے کہ یہ کام سرفرازی سے کیا جائے، بیداری سے، روح و سچائی سے کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ جو لوگ اس وقت برے حالات میں ہیں اور جو بچے نشہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خداوند میں آ جائیں اور خداوند کے نام کو جلا دے سکیں۔ ہم ان لڑکیوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند ان کو اپنی پاک پناہ میں رکھے، جبکہ ابلیس بڑے زور کے ساتھ پھر رہا ہے، شیر ببر کی طرح دھار رہا ہے کہ خداوند ان بچیوں کو اپنی محافظ میں لے تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ آئے ہم اپنی عبادت کا آغاز کلام مقدس میں سے شروع کریں گے، جس کے پاس خدا کا کلام وہ میرے سال نکالنے زبور 4 کی ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے کشیدگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک باطل سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم کا جلوہ گر فرما۔ تو نے میری دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مہر کی فرمانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سویا رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا کریں گے آج کی دعائیہ میٹنگ کے لیے جو ہمارے مقصد ہیں۔ خداوند تو جانتا ہے خداوند، کیونکہ تو دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ہمارا اکٹھا ہونا، مل کر بیٹھنا، خداوند تیرے آگے کوئی چیز چھپی نہیں ہے خداوند۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا نام سرفرازی پائے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ آج ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ بہن دلشاد اس دعا میں رہنمائی کرے۔ گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو نے ہمیں زندہ اور قائم رکھا کہ ہم تیرا پاک نام لے ہیں پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، آج سارا دن کے لیے پیارے خداوند دعا کرتے ہیں پیارے خداوند۔ اگر سارا دن کوئی غلطی خطا ہوگی تو ہمیں معاف فرمانا پیارے خداوند۔ تو معاف کرنے میں قادر خدا ہے پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، اے پیارے خداوند، تو نے صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دی ہے پیارے خداوند۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم تیرے لیے کچھ کریں اے پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، ہمیں حکمت اور دانائی دینا ہے پیارے خداوند، عقل دینا ہے پیارے خداوند، تاکہ ہم تیری خدمت کے لیے آگے بڑھیں اے پیارے خداوند، تیرے نام کو عزت اور جلال بخشیں اے پیارے خداوند۔ میں دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، جتنے ساتھ تیرے آگے جھکے ہیں پیارے خداوند، ایک ایک کو برکت دینا ہے پیارے خداوند، اور سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، میں دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، ہر ساتھ یہ کہ پیارے خداوند کے ساتھ ہونا پیارے خداوند، کہ یہ تیری خدمت میں آگے بڑھتے رہیں پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند، گریس ٹی وی کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، اسے بلندیوں تک پہنچانا ہے پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند،
तेरी खिदमत में बढ़ती जाऊं मैं प्यारे खुदावन। मुझे ऐसी हिकमत और दनाई देना प्यारे खुदावन कि मैं तेरे पाक कलाम को समझ सकूं मैं प्यारे खुदावन, इसे जान सकूं मैं प्यारे खुदावन। गरीबों यतीमों के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, उनकी रहनुमाई करना है प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, जिनके पास कोई रोजगार नहीं प्यारे खुदावन, तो उनको रोजगार मुहैया करना है प्यारे खुदावन, उनका कोई जरिया बनाना है प्यारे खुदावन। परस्तिश में हमारे साथ होना है प्यारे खुदावन। ज़बूर गीत है प्यारे खुदावन, तेरी परस्तिश करे है प्यारे खुदावन। तूने कहा जहाँ 2 या 3 हाजिर में तुम्हारे दरमियान हाजिर है प्यारे खुदावन। हमारा ये ईमान है कि तू हमारे दरमियान हाजिर है, तेरा तख्त लग चुका है प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन, जितने सार झुके इनके बरतों से माला माल करना है प्यारे खुदावन, और जिनके पास भी तेरा पाक कलाम हो प्यारे खुदावन, तो उसकी रहनुमाई करना है प्यारे खुदावन। हमारी इस दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह। जब हम खुशी से खुदावन की परस्तिश करेंगे, खुशी से इबादत करेंगे, तो खुदावन अपनी बरकत अंधेरेगा आसमान पर से, ताकि हम बरकत पे बरकत हासिल कर सकें। अपने दिलों खुदावन को दे दें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, उसकी बेदारी के लिए दुआ करेंगे, हम उन नौजवानों के लिए दुआ करेंगे जो बेरोज़गार हैं, हम उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत अता करे। और मैं चाहूँगा कि इस दुआ में एल्डर जाकर रहनुमाई करें। खालिक मालिक, हम तुझे सजदा करते हैं, ये तू हमारा खुदावंद है, तू हमारी सुपर है, हमारी ढाल है, तू याकूब एलिया मूसा बनी इसराइल का खुदावंद है। हम तेरी लाखों और करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदा जमीन पर रखा हुआ है। हम इस लायक तो नहीं है, ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत है पाक खुदावंद। दुआ करते हैं बहनों के लिए पाक यीशु बादशाह, बहनों को, बेटियों को तरक्की अता कर खुदावंद पाक खुदा, तेरे कलाम में आगे बढ़ सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके पाक खुदा, अपने ईमान में मजबूत रह सके पाक खुदा। दुआ करते हैं लोगों के लिए जो कलीसिया में पाक यीशु बादशाह बे औलाद है, तेरे बेटी और बेटे बे औलाद हैं पाक खुदा, उनके लिए खुदावंद फिर से पाक यीशु बादशाह तेरा फजल मांगते हैं, तेरा रहम मांगते हैं, तेरे फजल को पाक यीशु बादशाह अनडेल अपने फजल को पाक खुदा हमारे लिए ऐ पाक खुदा अपने बेटियों को ऐ यीशु बादशाह औलाद जैसी नेमत अता कर पाक खुदा। ऐ पाक यीशु बादशाह, ये हमारा ईमान और तवक्कुल है। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जब भी हम दुआ पे सीधे से खुदावंद तेरे दरवाजे को खटखटाते हैं, तुम्हारे लिए खोलता और हमारी दुआओं को सुनता है। ऐ पाक खुदा हम दुआ करते हैं पाक यीशु बादशाह ग्रेस टीवी के लिए जो खुदावंद तेरी आवाज को दुनिया के कोने तक पहुंचाने की ऐ पाक यीशु बादशाह इन्हें हिम्मत और ताकत दे पाक यीशु बादशाह। ऐसे वसाइल हदैया कर खुदा पाक खुदा कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए कोने कोने में तेरा कलाम फैल सके। ऐ पाक यीशु बादशाह इस वक्त पाक खुदा इस इलाके के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। जो खुदा पाक खुदा दिन रात पाक यीशु बादशाह तेरे सफाई खुदा पाक खुदा बाकी वक्त में हम सब के साथ हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। से निजात मांगे, हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए, उसकी सलामती के लिए। देखो, और मैं चाहूँगा कि कलाम की तैयारी से पहले हम दुआ करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो चेयरमैन हैं ग्रेस चैनल के, वो इस दुआ में पेश होने वाला है, तो तेरे बंदा को तेरी हजूरी में दे देते हैं, तेरे पाक का दुगना मसा जाते हैं, ताकि आज जब वो कलाम कर रहा हो तो वो हमारे दिलों में, जिंदगियों में नक्श हो जाए। जलाल के बने खुदा कलाम की रोशनी में अपने आप को तैयार करे, अपने आप को जांचे, पहचाने, हमें जहाँ जहाँ पे जल्दियाँ हैं, खामियाँ हैं,
जिंदगी में से तमाम नाराजगी को, नापाकी को मेरे यीशु नाम से जलाकर भस्म कर दे। जलाल के बड़े खुदा आज का जिंदा पाक नाम जो है वो हथौड़ी की मानद बरसे, जो हमारी जिंदगियों में से मकारी भरे गुनाह की चट्टानें पाई जाती हैं। जलाल के बड़े खुदा हथौड़ी की मानद बरसे जो इन चट्टानों को चकनाचूर कर दे। तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत चाहते हैं अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में। मेरे खुदा हमें आंखें खड़ा रोज बरोज से सुंदर कर, ताकि मेरे खुदा तेरे पाक के नाम से हम सैराब होकर मेरे खुदा बहुत सारी जिंदगियों को जो अभी इसके चुंगल में है, जो गुनाह की दलदल में है, निकालते चले जाएं, उनको शराब करते चले जाएं। बकिया वक्त में तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कुदूस के नाम में मांगते हैं। ज़बूर 34 और उसकी 10 आयत मैं खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से तलावत करूँगा। ज़बूर 34 34 और उसकी 10 वर्ष है। मैं खुदा उनके पाक कलाम में से आपके सामने तलावत करूँगा। कलाम अक़दस में लिखा है, बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। कलाम अक़दस का ये हिस्सा जो अभी आपके सामने वर्ष तलावत की गई, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। खुदावंद हमेशा उन लोगों की फिक्र करता है। और यह बड़ी खूबसूरत आयत मुबारक जो भी आपके सामने तलावत की गई कि लिखा है कि पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। खुदावंद के तालब जो है, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके सामने झुकने वाले हैं, वो किसी नेमत के मुताज ना होंगे, क्योंकि खुदा अपने लोगों को मजबले से उठाता और बुलंदियों पर ले चलता है। खुदा हर रोज हमारी फिक्र करता है, खुदा हमारे आगे आगे चलता है, हमारे रास्तों को हमवार बनाता है। लिखा है कि शेर बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, अपने लोगों के आगे की चलता और उसके नाम और रास्तों को मुआर बनाता है। जब यीशु जिंदगियों में आ जाता है तो फिर खत्ते भरना शुरू हो जाते हैं, फिर जाल भरना शुरू हो जाते हैं, फिर पैमाने लबरेज होना शुरू हो जाते हैं, और वो अपने ताबुन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी रहमतों की बात हमेशा उसके लोगों पर बरसती रहती है। हालेलुया। कलाम अक़दस में से हम जब देखते हैं पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत में हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि किस तरह वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। खुदा अपने लोगों के खाने पीने पहनने की फिक्र करता है। जिस तरह हमने ज़बूर 34 की 10 आयत में पढ़ा, खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताज न होंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा अपने लोगों को कभी मोहताज नहीं होने देता। और लिखा है कि एलिया तशबी जो जलाद के प्रदेशियों में से था, इख्याब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी न मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक़ की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा चुक, और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौमों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदा उनके कलाम के मुताबिक किया
क्योंकि वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला से पिया करता था। और कुछ अर्सा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अब देखिए कि खुदा किस तरह अपने लोगों की फिक्र करता है। लिखा है कि खुदा का कलाम एलिया पर नाज़िल हुआ और खुदा ने उसे एक तरतीब बताई कि तू यहां से चल दे और क्रेत के नाला के पास जा जाओ। खुदा ने उसे पूरा प्लान बताया कि मशरक की तरफ जो है तो यहां से चल दे, क्योंकि एलिया की दुआ की वजह से वहां बारिश नहीं हुई थी, काल पड़ा हुआ था, ना फसल थी और ना कोई ऐसी अनाज पैदा हुआ था जिसके वसीला से लोग जो है खा पी सके। और खुदा ने, क्योंकि खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, खुदा अपने लोगों के आगे आगे चलता है और उनके नाहमवार रास्तों को हमवार बनाता है। खुदा ने एलिया को कहा कि क्योंकि यहाँ काल है, यहाँ बारिश नहीं हुई, तो यहाँ से चल दे। और कलाम में लिखा है कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख करके क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, तो इसी नाला में से पीना। और मैंने कौमों को हुक्म दिया, हालेलुया, मैंने कौमों को हुक्म दिया है कि वो तेरी खुराक का बंदोबस्त करें। शेरे बबर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदावन के ताल्लुक किसी नेमत के मुताज ना होंगे, क्योंकि खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। और खुदा ने एक प्लान दिया एलिया को कि तू जा और मैंने तेरा इंतजाम किया हुआ है, क्रेत के नाला से चल यहां से। और एलिया ने खुदा की आवाज पर अल्लाह बैक कहा, क्योंकि एलिया जानता था कि खुदा मेरी फिक्र करता है, खुदा मेरे आगे आगे चलता है, खुदा मेरे नाम और रास्तों को हमवार बनेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी मोहताज नहीं होने दूंगा। उसने मेरा इंतजाम जरूर किया होगा। और हम देखते हैं कि वो खुदा उनके कहने के मुताबिक चल पड़ा और खुदा ने उसे कहा कि मैंने तेरी परवरिश के लिए कौमों को हुक्म दिया है कि वो तुझे खाना मुहैया करें, क्योंकि वो जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है और जहां नहीं बुतराता वहां से भी जमा करता है। और अब देखें कि कौमें हमेशा खाना छीनते हैं, खाना देते नहीं है, लेकिन खुदा ने ऐसा इंतजाम किया क्योंकि चरिंद परिंद हवा और दरिया समुंदर पहाड़ उसका कहना मानते हैं। और वो कहता कि हो जा तो हो जाता है। जिस तरह उसने हवा और पानी को डांटा तो वो थम गए, उसने कहा कि थम जा, तो हवा और पानी जो है वो उसका हुक्म मानने लगे और वो थम गए। इसी तरह उसने कौमों को हुक्म दिया कि मेरे बंदा जो है एलिया को वो खाना पहुंचाएं और सुबह शाम वो अच्छा खाना गोश्त और जो है रोटी उसे फराहम करते रहे। अब देखें कि कुछ अरसे बाद वो नाला जो है वो सूख गया, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, नाला पानी से सूख गया। अब खुदा का प्लान देखें कि खुदा आगे अपने लोगों के लिए रास्तों को हमवार करता है, खुदा आगे इंतजाम करता है। क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदा उनके ताल्लुक किसी नेमत के मुताज ना होंगे। खुदा हर रोज हमारी फिक्र करता है। वो नाला जो है क्रेत का नाला वो सूख गया। अब खुदा ने उसका आगे इंतजाम किया।
और अब देखें लिखा है कि तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठकर वो सैदा के सारपत को जा वहीं रह और देख मैंने एक बेवा को हुक्म दिया। पहले कौवे उसके लिए इंतजाम करते थे, जब नाला सूख गया फिर खुदा ने उनसे कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और खुदा ने उससे कहा कि मैंने बेवा को वहां हुक्म दे दिया है कि वो तेरे रोटी और पानी का इंतजाम करे। लिखा है तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ सैदा के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। और लिखा है सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा और वहां लकड़ियां चुन रही है। उसने उसे पुकार कर कहा जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी और मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम मेरे यहाँ रोटी नहीं सिर्फ मुट्ठी भर आटा है और एक मटके में थोड़ा सा तेल है और एक कुप्पी में है, और देख मैं एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम इसे खाएं और फिर मर जाएं, क्योंकि काल पड़ा हुआ। अब वहां खुदा ने एक बेवा को वहां हुक्म दिया कि खुदा ने एलिय्याह को कहा कि वहां जा और मैंने तेरा बंदोबस्त कर दिया है।